students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion. We will be revising the complete chapter concepts along with MCQ discussion, and topic for this lecture is basic organic chemistry. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So as you know, in the chapter of basic organic chemistry, we have to learn about some reaction intermediates and effects. Apart from that, aromaticity, these are the main topics. And in effects, we have to take up inductive effect, hyperconjugation, resonance, electromeric effect, etc. Now in this lecture, we will be taking up the reaction mechanisms, types of reaction, which reaction has carbocation as an intermediate, which reaction has free radical as an intermediate. So the knowledge of intermediate is required to understand the mechanism of a reaction, right? We have to take up whether 3-degree radical is stable or 2-degree is stable, or which carbocation is stable, in which case rearrangement can take place. For example, carbocations can rearrange by hydride shift, they can rearrange by methyl shift, and resonance is taking place under which condition, so the given system is conjugated or not. All those concepts we have to revise through these questions. And you know, the chapter of general organic chemistry is used in each and every chapter of organic chemistry, so concepts are very important for this chapter, very much required for entrance exam. Let's start our work with question number 23. The order of stability of compounds X, Y and Z is, you are given 3 compounds. तो double bond तो सबके अंदर हैं, 2 double bonds are there, and stability order we have to mention. What is the way out? We will be writing the structure. Let's write the Z structure first of all. Z molecule is this. Can I count the pi electrons? Total 6 pi electrons you can see. These 6 pi electrons means it is a Huckel number. Huckel rule says that if you have a cyclic system and conjugated system and it has 4n plus 2 pi electrons, then it is aromatic. तो n का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो 6 pi electrons means system will be aromatic. Got it? फिर आता है कंपाउंड Y. कंपाउंड Y के लिए हमारे पास गिवन सिचुएशन क्या है? डबल बॉन्ड्स आर देयर बट ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो देयर. तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है. सो कैन आई से टोटल 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 4 पाई पे सिस्टम एरोमेटिक नहीं होता, रादर सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाता है. दिस इज एंटी एरोमेटिक. 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास हैं तो वो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है. एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल. इट इज हाईली अनस्टेबल. इतना अनस्टेबल होता है कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता एंटी एरोमेटिक. कंपाउंड X की बात करते हैं. X is having 4 pi electrons and conjugation is not there in the entire molecule. ये जो टॉप का कार्बन है, टॉप मोस्ट कार्बन इज sp3. sp3 मतलब टेट्राहीड्रल. टेट्राहीड्रल होने से ये नॉन प्लेनर हो गया. तो यहाँ कॉन्जुगेशन आधे मॉलिक्यूल में है, आधे में नहीं है, तो ये तो स्टेबल नहीं होगा. मोस्ट स्टेबल तो एरोमेटिक ही होता है ना. तो हमारे सिचुएशन में Z1 जो कंपाउंड Z है वो मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद X और उसके बाद Y, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं. उसके बाद आता है X और उसके बाद आता है Y. दिस इज दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स और आयोन्स, राइट. आपको एक कैटायन दिया हुआ था, तो जो एरोमेटिक था उसको हमने स्टेबिलिटी के लिए टॉप पे रख दिया, जो एंटी एरोमेटिक था वो तो लास्ट में आएगा, हाईली अनस्टेबल होता है. तो Z इज मोस्ट स्टेबल, फिर X और फिर Y. तो आंसर क्या बन रहा है फॉर क्वेश्चन 23? Z X Y मीन्स C इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? अभी आते हैं आगे 24th क्वेश्चन.
Which of the following pair of compounds or structures do not represent resonating structures? जो भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना हो? तो अलग अलग सिचुएशंस हमें दी हैं। ये बात याद रखें, ऑप्शंस रीड करने से पहले ये आइडिया होना चाहिए, रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन इफेक्ट्स के ऊपर ही आप ये समझ सकते हो कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रहा है। तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इनके क्वेश्चंस फिर से आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, कोई भी एटम मूव नहीं करता रेजोनेंस में, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज मूव करेगा वो भी अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। ये मेन कंडीशन है, कॉन्जुगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन एंड मॉलिक्यूल हैज टू बी प्लेनर, एक ही प्लेन में सब एटम्स होने चाहिए। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ए ऑप्शन अगर हम लिखे यहाँ पे, ए में हमें एक कंपाउंड दिया है एसीटोन और नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका कीटो इनोल फॉर्म है। इफ दिस इज कीटो, दिस इज इनोल, एंड कीटो एंड इनोल आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहां से आपने एक H हटाना है। ये देखिए CH3 को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। पहले CH3 के मैंने तीनों हाइड्रोजन खोल दिए, एक हाइड्रोजन को आपने CH बॉन्ड को मूव कर देना है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पाई बॉन्ड बने, ये पाई बॉन्ड टूट गया और ये H को शिफ्ट करना है। 1-3 शिफ्ट बोला जाता है, 1 2 एंड 3, 1-3 माइग्रेशन होती है, राइट। तो कीटो अपने आप से इनोल में कन्वर्ट होता है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, बट मोर स्टेबल इज कीटो फॉर्म एज कंपेयर टू इनोल। तो कहने का मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं है। यहाँ तो एक एटम ही मूव कर गया, हाइड्रोजन मूव कर गया। अगर कार्बन का नंबर 1 दे तो हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, सो दिस इज नॉट रेजोनेंस। बी ऑप्शन देखते हैं। बी स्ट्रक्चर में आपको जो दिया है वो है साइक्लोहेक्सेन का रिंग और फिर डबल बॉन्ड और साथ में स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंज्ड। ये आपको गिवन है इन बी ऑप्शन। देखिए किस तरह से रेजोनेंस हो रही है। ऑक्सीजन ऑलवेज हैज 2 लोन पेयर ऑन इट, ये याद रखना है। अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उस पर, तो उसके ऊपर हमेशा 2 लोन पेयर होता है, चाहे ऑक्सीजन वाटर में देखो, चाहे O2 में देखो, या हमारे इस कंपाउंड में देखते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है गिवन स्ट्रक्चर के अंदर। किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। पहली बात तो लेफ्ट साइड पे जो मैंने लिखा है वो कॉन्जुगेटेड है, ये पहले चेक कर लेना चाहिए। कॉन्जुगेटेड होता है तभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया और ये यहाँ गया और एज अ रिजल्ट अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 की जगह 3 लोन पेयर हो गए, ये 2 और एक 3। जब जब ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया और लोन पेयर का पोजीशन बदल गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के पोजीशन बदल गए। तो दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर डबल हेडेड एरो। तो बी ऑप्शन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं था। सी को देखते हैं। सी के अंदर आपको दिया है एसीटोन बना के साथ में H लगा दिया, CH3 CH3 देन O एंड H, दिस इज गिवन टू यू। और बॉन्ड देखो, हमें यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड गिवन है। अब दूसरा मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, फिर से एसीटोन का H लगा रखा है, कार्बन पे पॉजिटिव दिया है, ये सी ऑप्शन हमें गिवन है। अब चेक करते हैं किस तरीके से मूवमेंट हुआ होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तभी आता है जब उस पे एक लोन पेयर हो। न्यूट्रल स्टेट में उस पे 2 लोन पेयर रखने हैं। तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन अपने तरफ खुद से विड्रॉ कर लेगी। कैसे किया, उसने पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया। पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही कार्बन के बॉन्ड जो कि 4 थे अब 3 रह गए। कार्बन के 3 बॉन्ड है, इसलिए कार्बन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। ऑक्सीजन का पॉजिटिव डिसअपियर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर वापस मिल गए, राइट। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रेजोनेंस में। डी को चेक करते हैं।
डी में मॉलिक्यूल दिया है CH2CO, दिस इज गिवन टू अस इन डी ऑप्शन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर दिया CH2CO एंड नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये पॉजिटिव गिवन है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन अगर इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आ जाए, ये सिचुएशन अराइज हो जाएगा, कार्बन पे फिर नेगेटिव आ जाएगा, पाई बॉन्ड मूव किया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन विल हैव ए पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, whenever oxygen has a single lone pair there will be positive charge on it. When oxygen has two lone pair there is no charge on it. When it has three lone pairs there is a negative charge on it, right? So all of them are the resonating structures except one. फर्स्ट तो कीटोइनोल है, इसमें तो H मूव करता है, कीटोइनोल को 1,3 माइग्रेशन ऑफ H प्लस कहते हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं होता कि कोई एटम मूव कर गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ लोन पेयर मूव कर सकता है, या पाई बॉन्ड या फिर चार्जेस। गॉट इट? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे आते हैं क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल रेडिकल? आपको कुछ रेडिकल्स दिए हैं, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के लिए ये बात याद होना चाहिए, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज that 3 degree is more stable than 2 degree and it is more stable than 1 degree। तो अब हम पहले मार्क करते हैं, हमारे को ए ऑप्शन में चेक करिए, जिस कार्बन पे रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, इट इज अटैच टू 2 अदर कार्बन्स, तो ये 2 डिग्री रेडिकल है, और ये है 1 डिग्री रेडिकल, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री रेडिकल। डी ऑप्शन में देखो 2 डिग्री है, जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है, उसके ऊपर 2 कार्बन अटैच्ड हैं, बट साथ साथ में ये एलाइल भी तो है, इट इज एलिलिक 2 डिग्री रेडिकल। एलिलिक 2 डिग्री का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सबसे पहले याद रखिए कि दिस इज कॉल्ड एज एलाइल फ्री रेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। एलाइल फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल होता है, और हमारे को डी ऑप्शन में जो गिवन है वो एलाइल के साथ साथ, ये तो एलाइल और 1 डिग्री है ना, जो हमें गिवन है वो एलाइल के साथ साथ 2 डिग्री भी है। 3 डिग्री होता तो और भी स्टेबल होता, बट एनीवे 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। दिस सिचुएशन इज गिवन टू अस, रेडिकल यहां बना रखा है, ये रेडिकल को हम डॉट से शो करते हैं, सो इट इज एलिलिक 2 डिग्री फ्री रेडिकल। देयरफॉर रेजोनेंस होगा इसमें, रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेगी। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। रेजोनेंस के लिए अगर पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हाफ हेडेड एरो लगेगा, और ये हाफ हेडेड एरो यहां लगेगा, ये चेक करते हैं, ये इस तरीके से हाफ हेडेड एरो, प्रॉपर फुल एरो लगाएंगे तो उसका मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हाफ हेडेड लगाएंगे तो मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया, और ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH3, दिस इज द फ्री रेडिकल। क्लियर? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए ये बहुत स्टेबल है। हमारा क्वेश्चन यही तो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल रेडिकल? स्टेबल रेडिकल, मोस्ट स्टेबल मीन्स D is the answer. Got it? Coming to the next question 26, फिर से है मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स गिवन है, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट में तो कोई रेडिकल ही नहीं दिया है, कहीं पे भी डॉट नहीं लगाया। लेट्स कम टू बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जिस कार्बन पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डॉट लगा है, वो 3 डिग्री कार्बन है, इट इज अटैच टू 3 अदर कार्बन्स। सी ऑप्शन इज एलिलिक एज वेल एज 3 डिग्री। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन का नाम एलिलिक पोजीशन है, तो ये एलिलिक भी है और ये 3 डिग्री भी है, और ये तो 1 डिग्री रेडिकल है। सो मोस्ट स्टेबल इज एलिलिक एंड 3 डिग्री। इस तरीके से रेजोनेंस आएगा इसमें। वी हैव दिस सिचुएशन, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन हाफ हेडेड एरो से हम मूव करता हुआ दिखाएंगे, और इधर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मूव कर गया, तो डबल बॉन्ड बनेगा एट दिस पोजीशन, एंड दिस इज द फ्री रेडिकल।
जो रेडिकल था उसकी पोजीशन चेंज हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई, तो रेजोनेंस ने इसको हाईली स्टेबल बना रखा है. सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल. आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इज आस्क्ड. विनाइल रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, एलाइल रेडिकल स्टेबल होता है. गॉट इट? 27th क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन? अब देखो कार्बन आयन के ऊपर है क्वेश्चन और लीस्ट स्टेबल के लिए आंसर करना है. एरोमेटिक सिस्टम्स दिए गए हैं, सबके अंदर बेंजीन रिंग है. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बात माइंड में रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप if it is attached on carbon ion it will stabilize. Electron withdrawing group stabilizes the carbon ion. बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको डीस्टेबलाइज कर देगा. इट विल डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन. गॉट इट? तो फर्स्ट है CH3O and then you have this benzyl attached negative charge and we have this situation. लोन पेयर हैं दो दो ऑक्सीजन के ऊपर. मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है व्हेन इट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी कभी कोई ऐसा एटम लगा है जिसके पास लोन पेयर है, क्योंकि रिंग में कॉन्जुगेशन है, ऊपर वाले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर देता है थ्रू रेजोनेंस. दिस इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा और रिंग की पैरा पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच जाएगी. नेगेटिव चार्ज गेट्स इंटेंसिफाइड. इंटेंसिफाइड नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज अगर इंटेंसिफाई हो गया तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मतलब है कि ये अनस्टेबल बन गया. चार्ज एक जगह पे अकमुलेट नहीं होना चाहिए. चार्ज कैसे स्टेबल होता है? जब डिस्पर्स हो जाएगा सब तरफ. डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिस्पर्सल ऑफ चार्ज और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी. Dispersal of charge or neutralization of charge leads to stability. या तो चार्ज डिस्पर्स हो जाए या फिर न्यूट्रलाइज कर दे उसको कोई, तब चार्ज के लिए सिस्टम स्टेबल बनता है. बट यहां तो चार्ज इंटेंसिफाई हो गया तो ये तो हो गया अनस्टेबल. तो ये ए ऑप्शन अनस्टेबल आ रहा है. बट हम आगे चेक करते हैं बी ऑप्शन में. देखो क्या सिचुएशन है. In option B we are given NO attached at the meta position, ये दिया है, and a carbon ion is given. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा NO. It will withdraw. मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती है. मेटा पे रेजोनेंस तो पॉसिबल ही नहीं है ना. -R is not possible at मेटा. ये सिर्फ -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और उसको कुछ हद तक स्टेबल बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर विड्रॉ होके स्प्रेड हो रहा है तो स्टेबिलिटी आएगी. नाइट्रो नहीं है ये, NO इज नाइट्रोसो. तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये विड्रॉ करेगा और -I से करेगा. बाकी यहाँ पे वो तो पॉसिबल ही नहीं है रेजोनेंस. -R इज नॉट पॉसिबल. सी ऑप्शन को देखते हैं. सी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? COOCH3 इज अटैच्ड. We have a benzylic anion. benzyl इसको कहते हैं, बट इसकी पैरा पोजीशन पे COOCH3 is given. तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉ करके उसको कुछ हद तक स्टेबल करेगा. इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. Therefore कार्बन आयन इज स्टेबल. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू -R. डी ऑप्शन चेक करते हैं. डी में नाइट्रो लगा है. अब डी में नाइट्रो है तो नाइट्रो इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. नाइट्रो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो भी कार्बन आयन स्टेबल बन जाता है. ठीक है. अब हमारे को तो लीस्ट स्टेबल बताना था. लीस्ट स्टेबल है ऑप्शन ए ऑप्शन को आप फिर से देख लो. इन ऑप्शन ए मिथॉक्सी वॉज अटैच्ड विच वॉज गिविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू +R प्लस रेजोनेंस. रेजोनेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है. हमारा आंसर
27th क्वेश्चन का ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नाउ। Identify the most stable structure among the following. You are given carbocations this time. अलग अलग सिचुएशन में ऑक्सीजन लगा है और पॉजिटिव चार्ज लगा है, आपको मोस्ट स्टेबल फाइंड आउट करना है। मोस्ट स्टेबल देखिए ए ऑप्शन को ड्रॉ करते हैं। इन ऑप्शन ए वी हैव CH2 विद द पॉजिटिव चार्ज एट द टॉप एंड ऑक्सीजन भी है उसके साथ ऊपर रिंग में। I have to draw oxygen at this position. बी ऑप्शन में फिर से वही सिचुएशन बट पैरा पे ऑक्सीजन लगा है। सी के अंदर, सी तो बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। पॉजिटिव चार्ज भी और ऑक्सीजन भी साथ साथ में लगे हैं। और डी को देखो, डी में पॉजिटिव चार्ज है ऊपर और फिर ऑक्सीजन, ये सिचुएशन ठीक है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, -I से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो जब कार्बोकैटायन के ऊपर -I ग्रुप कोई लगेगा तो वो उसको अनस्टेबल बना देता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उसके बाद ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट से फर्दर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करो तो वो और अनस्टेबल बन जाएगा। सो दिस इज हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे भी ये विड्रॉ कर रहा है और -I से ही विड्रॉ कर रहा है। रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकती, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। -I तो जहां जहां ऑक्सीजन -I शो करेगा वो कार्बोकैटायन को अनस्टेबल बनाएगा। बट सी ऑप्शन एक स्पेशल ऑप्शन है, सी को ठीक से देखिए। सी इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। किस तरह से? लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। वेन एवर कल के लेक्चर में आपने देखा कार्बोकैटायंस में, वेन एवर अ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली अटैच टू ए हेटेरो एटम हैविंग लोन पेयर, दैट कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। क्योंकि अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये डेफिशिएंसी जो है, ये खत्म हो जाए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको ये सिचुएशन दिखेगा, ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इंस्टेड ऑफ 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर विल बी देयर एंड ए डबल बॉन्ड। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग गया तो अपने आप से वो डेफिशिएंसी खत्म हो गई, वो पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो गया। सो दिस इज हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। डी ऑप्शन में तो फिर से वही है, कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा था। Every time lone pair is available when oxygen is in neutral state, but यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर फिर 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, बाद में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड, दिस इज शोइंग ऑक्सीजन इज शोइंग -I and it is unstable. The important point is carbocation if attached to an atom having lone pair, carbocation if attached to an atom having lone pair of electrons is highly stable. It is highly stable due to resonance. ये important point था। तो अब हमारे को मोस्ट स्टेबल दिखाना था। लोन पेयर तो हमेशा हैं, ये देखो यहाँ भी लोन पेयर हैं, बट डबल बॉन्ड कहीं नहीं है अंदर, तो कॉन्जुगेशन नहीं है। फिर या लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज पास पास में हो या लोन पेयर और नेगेटिव पास में हो तो भी रेजोनेंस हो जाती है, बट यहाँ नहीं हो पाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायंस? फिर से आपको कुछ कैटायंस दिए हैं, वी कैन राइट देम हेयर। दिस इज ऑप्शन ए, फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड में, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड में OCH3 लगा रखा है, CH एंड पॉजिटिव चार्ज एंड OCH3। थर्ड में ये सिचुएशन है कि कार्बन्स का नंबर इंक्रीज कर दिया गया है एंड वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर, ये आपको दिया जा रहा है, यहाँ CH है, राइट। 1, 2 and 3 these compounds are given. ऑक्सीजन सेकेंड और थर्ड कंपाउंड में और ऑक्सीजन के लोन पेयर हम शो कर देते हैं। कैन आई से इन दिस केस सेकेंड कंपाउंड में रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस का मतलब है
कि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट ऑक्सीजन पे 2 की जगह एक लोन पेयर रह गया, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। अब हम थर्ड कंपाउंड में आते हैं। थर्ड के अंदर ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं बट कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल के बाद सिंगल, फिर से सिंगल, 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। आई मीन टू से sp3 कार्बन इज कमिंग इन बिटवीन। sp3 कार्बन अगर सेंटर में होता है तो फिर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है और रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इज प्रिवेंटेड। तो यहां पे तो ये रेजोनेंस नहीं हो रही है। फिर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा? सिर्फ -I। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड से ही विड्रॉ हो रहे हैं, तो ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। किसी पॉजिटिव चार्ज से आप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव चार्ज मतलब पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और विड्रॉ कर लेंगे तो और अनस्टेबल बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमारे पास मिला सेकेंड, फिर आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ना तो रेजोनेंस हो रही है ना कोई इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। थर्ड विल बी द लास्ट वन। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है। इन ऑप्शन ए इट इज रिटन थर्ड, देन फर्स्ट एंड देन सॉरी सेकंड टॉप पे, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ऑप्शन ए आपका आंसर है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ रेजोनेंस है कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, वो आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए। आता है क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। आयोनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। Which of the following carboxylate ion is most stable? डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से स्टेबिलिटी आती है, ये नेचर का रूल है। अब हम देखते हैं, हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, कुछ आयन्स दिए हैं, कौन सा स्टेबल है। फर्स्ट केस के अंदर चार्ज इस तरह से डिस्पर्स होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी। आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा, it is CH3CO negative then double bond O. So ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ऑप्शन ए। बी ऑप्शन में क्या सिचुएशन है? इन बी ऑप्शन वी हैव क्लोरीन अटैच्ड, Cl is attached and chlorine is an electron withdrawing group। वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसको स्टेबल बना देगा। इलेक्ट्रॉन इधर को विड्रॉ होंगे, सो -I ग्रुप है ना क्लोरीन, -I group will stabilize, it stabilizes the carbon ion, right। फिर C में तो सेम फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और D के अंदर अगर मैं D ड्रॉ करूं तो ज्यादा फ्लोरीन्स लगी हैं, 2 फ्लोरीन लगी हैं। सो दे विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स देमसेल्फ बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, so it becomes stable। Stability of an ion, or we can say carbon ion, it is dependent upon the electronegativity of the atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, और यहाँ डी ऑप्शन में तो 2 फ्लोरीन लगे हैं, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, ये और ज्यादा स्टेबल बनेगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, right। Coming to 31, in the following compound which hydrogen is most acidic? So जनरल ऑर्गेनिक के चैप्टर में ये recognize करना the given compound is acidic or not और basic or not, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, given structure has got some hydrogens जिनका नाम रखा गया है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये आपको मॉलिक्यूल गिवन है, इनके हाइड्रोजन्स के हमने नाम रख दिए हैं, कहीं पे डबल बॉन्ड है कहीं नहीं है। पहले हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे केयरफुली। यस, यहाँ हाइड्रोजन डबल, ये सिंगल बॉन्ड है। इन द गिवन स्ट्रक्चर वी हैव ए सिंगल बॉन्ड एंड ए डबल बॉन्ड एट दिस पोजीशन। OH इज अटैच्ड एट द बॉटम, दीज आर द हाइड्रोजन्स, और सिंगल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन होती हैं, राइट। दिस मॉलिक्यूल इज गिवन टू अस, और मॉलिक्यूल में इनका नाम रखा है अल्फा हाइड्रोजन्स, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, और ये है गामा। इन दोनों को गामा बोल दिया और इन दोनों को डेल्टा बोल दिया।
सबसे पहली बात, ऊपर जो कीटोन लगा है फंक्शनल ग्रुप, कीटो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और उससे नेक्स्ट पोजीशन की जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो अल्टीमेटली कार्बन को, ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए कार्बन से और फाइनली हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कार्बन फिर हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लेगा। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। बट ये बीटा हाइड्रोजन को देखो, बीटा हाइड्रोजन में क्या पोजीशन है कि हाइड्रोजन इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन के ऊपर अटैच्ड है, और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करती है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, इसलिए H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर चली जाएगी। वी कैन मेंशन दैट हाइड्रोजन अटैच्ड डायरेक्टली, हाइड्रोजन अटैच्ड डायरेक्टली टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, to an electronegative atom like oxygen or nitrogen or fluorine is highly acidic, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है, फिर हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ता है। व्हेन अ गिवन कंपाउंड विल लूज हाइड्रोजन, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एसिडिक, राइट। तो कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक है? ये बीटा वाली। वैसे अल्फा हाइड्रोजन जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैच्ड है, sp2 कार्बन की हाइड्रोजन लूज नहीं होती है। ये जो गामा हाइड्रोजन है ये लूज हो सकती है, बट मोस्ट एसिडिक पूछा जा रहा था हमें, मोस्ट एसिडिक में आंसर है बी, बिकॉज जो बीटा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैच्ड है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 32, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वी आर गिवन नाइट्रो ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजोइक न्यूक्लियस फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थोपैरासाइट्स। क्या नाइट्रो एक्टिवेट करता है बेंजोइक न्यूक्लियस को? ये देखो, ये मैंने बेंजोइक एसिड बना दिया और फिर बेंजोइक एसिड पे नाइट्रो लगा दिया और पैरा पोजीशन पे बोला गया था ऑप्शन ए में, ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा? इसने कहा इट एक्टिवेट्स द बेंजोइक न्यूक्लियस फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये तो गलत है। इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, NH2 ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजोइक न्यूक्लियस फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थोपैरासाइट्स। We have a benzoic acid and at ortho or at para NH2 लगा दिया। NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रो में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता। अगर मुझे नाइट्रो का स्ट्रक्चर एक्सपेंड करना है तो आप देख सकते हो, नाइट्रो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन कभी नाइट्रो की नाइट्रोजन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो खुद ही अपना लोन पेयर ऑलरेडी ऑक्सीजन को दे चुकी है। बट NH2 में लोन पेयर है, सो देयर विल बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आपको देखनी है तो हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं, डबल सिंगल एंड COH एट द टॉप, NH2 एट द बॉटम। कैन यू सी द कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन होता है डबल सिंगल एंड फिर ये भी होता है डबल सिंगल एंड लोन पेयर। तो ये सिचुएशन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर डबल बॉन्ड को आगे मूव करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। पहले अंदर पाई बॉन्ड थे, उसके बियॉन्ड लोन पेयर भी चला गया, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 group, right? Therefore electrophile approaches easily, इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर जल्दी से आएगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर बनेगा। क्या आंसर है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, NH2 विल एक्टिवेट द न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। C एंड D, C में लिखा है बोथ A एंड B, दैट इज रॉन्ग, A तो गलत था, B करेक्ट था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नाउ, which does not contain conjugated system.
कॉन्जुगेटेड होता है डबल, सिंगल एंड डबल। और डबल, सिंगल, डबल डी ऑप्शन में तो क्लियरली दिख रहा है बेंजीन इज कॉन्जुगेटेड, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट डू वी से अबाउट ए ऑप्शन, क्या ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड OH, यस दिस इज कॉन्जुगेटेड, डबल, सिंगल, डबल। बी ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO इज गिवन, इसको भी एक्सपेंड करेंगे। देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन एल्डिहाइड, अगेन इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। C के अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, C इज प्रोपीन, no conjugation, only one single bond is given to us, right? तो आप देख लो ए ऑप्शन जो था वो कॉन्जुगेटेड था, बी ऑप्शन इज कॉन्जुगेटेड एंड डी इज नॉट कॉन्जुगेटेड। our answer for this question will be that which does not contain conjugated system, it is C के पास conjugation नहीं है, राइट। तो कॉन्जुगेशन तो बेसिक कंडीशन है इस चैप्टर में रेजोनेंस के लिए। अब आता है क्वेश्चन 34, द फॉलोइंग कार्बोकेटायन चेंजेस टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। 4 ऑप्शंस हैं और ये कार्बोकेटायन हमें गिवन है, जब ये रीअरेंज करेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता, और रिंग भी बेंजीन का नहीं है, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है। एवरी कार्बन है सम हाइड्रोजन अटैच टू इट, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तब जाके इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। सो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, केयरफुली देखिए। हाइड्रोजन एटम अपने लोन पेयर, सॉरी अपना जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन पे लोन पेयर तो कभी होता ही नहीं है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों को साथ में लेके हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चली जाती है ताकि डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। ये हम एरो को दूसरी डायरेक्शन से शो करते हैं, यहां से शो करें कि हाइड्रोजन माइग्रेट करेगी तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आएगी, पर जब माइग्रेट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनेगा, हमारा रिंग वैसे का वैसे ही रहेगा, बट अब कॉर्नर पे CH3 आ गया और रिंग के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। फायदा क्या हुआ इस शिफ्ट का, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन पहले 1 डिग्री था, अब 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। जब जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव होती है तब तब शिफ्ट्स होती हैं, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर बी ऑप्शन में गिवन है, सी में तो डबल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आना हमारे रिंग में। हमारे गिवन मॉलिक्यूल में एक भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो कोई माइग्रेशन के बाद डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। हाइड्राइड किसको कहते हैं, हाइड्राइड इज हाइड्रोजन along with 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो साथ में जाएंगे और जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पहुंच जाएगा, वहां CH2 की जगह CH3 हो गया। तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ कोई मिथाइल तो था ही नहीं अटैच्ड, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35, electrophilic addition reactions proceed in 2 steps. The first step involves addition of an electrophile. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। ये रिएक्शन जब होगा तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा ये बताना है। वी आर गिवन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब समझ लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, लेट्स से कि मैंने इसमें HCl ऐड करना है, तो ये आंसर आता है ना, सेंटर कार्बन पे क्लोरीन लग जाता है, इसको मार्कोनिकॉव्स एडिशन कहते हैं। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, प्रोपीन से हम स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल जो है HCl में से जो H+ है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल ऑटोमेटिकली गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को अपने पास खींच लेते हैं और
फिर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। और ये सिचुएशन आएगी, हाइड्रोजन कॉर्नर के कार्बन पे लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में लगा दिया। दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री नहीं बनाया मैंने, कॉर्नर पे पॉजिटिव नहीं दिया क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। अगर हम ऐसा करें, लेट्स से कि मुझे ये लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H+। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि पॉजिटिव चार्ज कॉर्नर पे लग जाता और हाइड्रोजन सेंटर पे लग जाती। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहां इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हुए, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने कॉर्नर की तरफ कर दिए, जहां इलेक्ट्रॉन गए वहां H+ लगेगा, दूसरे कार्बन पे डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री इज नॉट स्टेबल। कभी भी 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता है, 2 डिग्री ही स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये हमारे मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। ये वाला तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेप में देखो फिर क्या होगा। मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है उसके ऊपर क्लोराइड लगेगा और क्लोरीन सेंटर कार्बन पे अटैच्ड, एंड द प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस एडिशन। बट इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटायन है और 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन आंसर है, ना कि कार्बेनायन। ए में तो कार्बेनायन लिखा है, आंसर है कार्बोकेटायन। जब जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन के ऊपर तो कार्बोकेटायंस बनते हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन 36 के ऊपर। CH3 CH2 डॉट रेडिकल दिया है, इट डिस्प्रपोर्शनेट्स टू। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिकल्स में डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है। किस तरह से होती है? इथाइल रेडिकल इज गिवन टू अस। तो इथाइल रेडिकल को पहले हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे। ये रेडिकल है। फिर इसमें किस तरह आप बॉन्ड को मूव करोगे? एक रेडिकल लिखा, फिर मैंने एक और रेडिकल लिखा, 2 बार ही लिख लिया। 2 रेडिकल लिखने के बाद डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाना है, तो यहां से हाइड्रोजन उसको मिल जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पास चली गई। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसके पास तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले था, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से आ। दूसरी तरफ हाइड्रोजन मिल रही है तो वो बनेगा इथेन। सो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिसने हाइड्रोजन लूज किया वो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीडेशन। जिसने गेन किया वो रिड्यूस। गेन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन। ये वाला रेडिकल को मैंने रिडक्शन कर दिया और जिसने लूज किया है उसका हमने ऑक्सीडेशन किया है। साइमल्टेनियसली एक ही मॉलिक्यूल में या एक ही आयन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। रिजल्ट क्या निकल रहा है? रेडिकल की डिस्प्रपोर्शनेशन से एक तरफ एल्कीन और एक तरफ एल्केन बन रहा है। ओके, सो इट विल रिजल्ट इनटू ऑप्शन ए। बी में तो ब्यूटेन दे दिया, सी में इथेन दे दिया, डी में इथीन दे दिया, तो सी भी बनेगा, डी भी बनेगा, दोनों इकट्ठे ही बनेंगे। जब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हमने शो करना है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन 37। Which of the following statements concerning E2 reaction of alkyl halide is true? A option is the rate of E2 depends on concentration of alkyl halide. E2 के बारे में क्वेश्चन है। E2 मतलब एलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, या इसने लिखा है E2 डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस? ए में तो एल्काइल हैलाइड कह दिया था। सी में बोला है CH एंड CX दोनों बॉन्ड्स दे आर ब्रोकन इन द सेम स्टेप। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन, एल्काइल क्लोराइड जनरली रिएक्ट फास्टर देन एराइल हैलाइड्स,
वो ठीक है, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड से फास्ट रिएक्ट करते हैं, बट क्वेश्चन तो E2 के बारे में पूछ रहा है ना, विच इज ट्रू अबाउट E2। E2 क्या होता है, एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर, दिस इज एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर। तो रिएक्शन देखिए 2 स्टेप्स में होगा, ये 2 स्टेप में नहीं, सिंगल स्टेप में होता है E2। बाई मॉलिकुलर मतलब रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस, बट रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही होता है। एंड वी हैव CH3CH2Cl। अगर आप इसमें कोई बेस डालते हो, समझ लो एल्कोहलिक KOH ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आता है इथीन प्लस KCl प्लस वाटर। किस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मैकेनिज्म देखेंगे। E2 मैकेनिज्म अगर मुझे लिखना है तो हम ये शो करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है और क्लोरीन कहाँ है। जिस कार्बन पे क्लोरीन लगी है उससे नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 दिख रही है। फिर बेस आता है और वो देखो या जहां फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्फा और नेक्स्ट वाले को बीटा, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, क्लोरीन वाला कार्बन अल्फा, आगे वाला कार्बन बीटा। तो अब बेस आके एक हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करता है, जो हाइड्रोजन क्लोरीन से दूर है उसके पास आके बेस अटैक करता है। बेस को मैंने बी लिख दिया। ये एक लोन पेयर था क्लोरीन के ऊपर 3 बेस उस तरफ से नहीं आता जहां क्लोरीन है, क्योंकि लोन पेयर उसको रिपेल करेंगे, बेस के पास या नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, जैसे कि अल्कोहलिक KOH हम कह रहे हैं एक अच्छा बेस है। तो वो बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो माइग्रेट होंगे, यहां सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्लोराइड भी साइड बाय साइड निकल जाता है। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। थिंग्स आर क्लियर। साइमल्टेनियसली आप देख रहे हो हाइड्रोजन और क्लोरीन डिटैच हो रही हैं, उधर से हाइड्रोजन जाएगी उधर से क्लोरीन, एंड आफ्टर द लॉस ऑफ हेलोजन हमें मिल जाता है एल्कीन। अब हम एल्कीन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड सेंटर में आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो आपने बेस था उसके साथ H लग गया, क्लोराइड K के साथ लग गया। अगर ये आपने KOH डाला है तो आप KOH की जगह ऐसे लिख सकते हो, वाटर एंड KCl आर रिमूव्ड। गॉट इट। तो ये मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप में होता है। E2 इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, बट रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी रेट डिपेंड करता है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बोथ आर रिमूव्ड इन द सिंगल स्टेप। ये ट्रांजिशन स्टेट है। E2 मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट एंड आपका आंसर वैसे डी ऑप्शन भी करेक्ट था कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर देन एराइल हैलाइड, बट हमें तो कंसर्निंग E2 बोलना है, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 38, which of the following alkyl halides can undergo SN1 reaction? SN1 किस किस में होगा? फर्स्ट इज क्लोरोबेंजीन। एराइल हैलाइड में तो रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डिफिकल्ट है। SN1 का क्या मतलब है? SN1 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन हमें करना है, और यहाँ एराइल हैलाइड के अंदर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो ये रिएक्ट करने वाला नहीं है। SN1 का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है, वो बात याद होनी चाहिए। बी ऑप्शन देखते हैं। बी के अंदर हमें दिया है एक अल्काइल ब्रोमाइड, और जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगी है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, और हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 and ethyl is written at the top, hydrogen at the bottom and bromine. Can I say that carbocation produced will be CH3C, CH2, CH3 and positive charge. So carbocation is
2 degree and it is stable due to inductive effect, it is stable due to hyperconjugation. C compound या थर्ड कंपाउंड, इन्होंने ABC नहीं दिया है, इट इज सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड कंपाउंड है और ये फर्स्ट था। थर्ड इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में भी वही प्रॉब्लम है जो एराइल क्लोराइड में है, इट इज अगेन हैविंग रेजोनेंस, लोन पेयर, कॉन्जुगेशन प्लस आर इफेक्ट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होगा, SN1 नहीं हो सकता। SN1 का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में हमें दे रखा है एलाइल आयोडाइड, दिस थिंग इज गिवन इन कंपाउंड 4, सो यहाँ रेजोनेंस नहीं है। आप देखो, अगर आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सारे ठीक से देखने हैं तो आप चेक कर सकते हो। आयोडीन पे लोन पेयर तो है, जैसे क्लोरीन पे होता है वैसे हर हेलोजन पे होता है, पर ये sp3 कार्बन बीच में आ रहा है, इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड, सो इट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। और आयोडाइड तो वैसे भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए हमें SN1 के लिए, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन इज स्टेबल तो SN1 प्रोसीड होगा। तो SN1 एक तो सेकेंड कंपाउंड में आपने देख लिया कार्बोकेटायन बन रहा था और फोर्थ में भी बन रहा है, फोर्थ को भी हाईलाइट कर देते हैं। वी कैन मेंशन हेयर दैट इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंड एंड फोर्थ में बना है। सेकेंड फोर्थ मीन्स ऑप्शन आएगी डी, D is your answer. Moving to the next question. Questions are regarding the mechanism. This is a question from Kerala Medical Entrance Exam 2015. Acid catalyzed hydration of alkene is an example of. जब एल्कीन के ऊपर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, you are given ethene and water is added, प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल, बट सल्फ्यूरिक एसिड के बिना ये एडिशन ऑफ वाटर नहीं होता, एसिड के बिना हाइड्रेशन नहीं होती है। इसी तरह अगर प्रोपीन दिया है तो भी हाइड्रेशन हो जाएगी, बट आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन तभी बनता है, प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, तो ये रिएक्शन क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एंड आंसर इज डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कीप इन माइंड इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है क्योंकि एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो जाता है। हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं इस तरीके से, जो आपने वाटर डाला, सबसे पहले जो कैटालिस्ट है ना H+, कैटालिस्ट विल ऐड ऑन द एल्कीन, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा एल्कीन का और कार्बोकेटाइन बनेगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर सेकेंड स्टेप में वाटर अटैक करेगा, वाटर का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये अटैक से यहाँ पे पहले हमारे पास OH बाद में आएगा, पहले OH2 मतलब पूरा वाटर अटैच हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में आएगा लॉस ऑफ वाटर, थर्ड स्टेप के अंदर ये जो है OH2+ हमने लेफ्ट पे लिख दिया, अब -H+ मतलब लॉस ऑफ वाटर नहीं, लॉस ऑफ H+ करना है, और एल्कोहल आंसर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन। ये सारा डिसाइडिंग फैक्टर सेकंड स्टेप है जिसमें कि कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो ही प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट इज एल्कोहल, मार्कोनिकॉव्स एडिशन किया एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो सी के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है, बी में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हैं, ये करेक्ट मैनर में एडिशन लिखना चाहिए था। एनीवे हमें उससे फर्क नहीं पड़ा, हमारा आंसर है डी। एल्कीन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इट इज CBSE AIPMT 2012 क्वेश्चन। Among the following compounds, one that is most reactive towards electrophilic nitration. इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन किसके अंदर फास्ट रेट पे होगी? ऑप्शंस आर बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड में ये याद रखो कि ये जो ग्रुप है COH ये -M है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। वी कैन मेंशन इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। नाइट्रोबेंजीन में भी यही सिचुएशन है, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। सी इज टॉल्वीन, टॉल्वीन मतलब CH3, CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है रिंग को। इट एक्टिवेट्स द रिंग बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। टॉल्वीन के बाद है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर तो कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, सो हमने ABCD सबके स्ट्रक्चर बनाए, कौन विड्रॉइंग है कौन रिलीजिंग है ये डिसाइड किया। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा एंड इट एक्टिवेट्स द रिंग, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस इजीली। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, आपका आंसर है सी ऑप्शन। CH3 होता है टॉल्वीन में, और टॉल्वीन में जो CH3 है वो कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है। CH बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो SN2। एम्स का क्वेश्चन है 2012 का। SN2 कौन शो नहीं करता है, विनाइल क्लोराइड, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ऑल ऑफ द अबव। लुक हियर, विनाइलिक हैलाइड डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर अगर हेलोजन लगा हो, जैसे कि उस पे क्लोरीन या उस पे ब्रोमीन लगी हो, तो रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गई। डबल, सिंगल एंड लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने हैं। कार्बन क्लोरीन विल एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर, कार्बन एंड हेलोजन CX बॉन्ड जो है इट एक्वायर्स अ डबल बॉन्ड करेक्टर, it will acquire a double bond character, therefore you can't cleave that bond। तो उसमें SN2 कैसे होगा, SN2 में तो हेलोजन को बाहर जाना पड़ेगा तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से रिएक्शन नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड क्यों आया, ड्यू टू रेजोनेंस। और फिर आगे बी ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन दे आर गिवन, वहां भी सेम सिचुएशन है। अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आपको दिए हों, वहां भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर है हेलोजन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सेम तरीके से ब्रोमीन भी डोनेट करेगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो ये था हमारा ऑप्शन बी वाला ब्रोमोबेंजीन है, सी वाला क्लोरोबेंजीन है। नो SN2 और SN1 कुछ भी नहीं हो सकता। एराइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सो इजीली, क्योंकि उनमें रेजोनेंस होती है। तो आंसर क्या होता है फिर, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम विल नॉट रिएक्ट बाय SN2। तो आगे आते हैं मैकेनिज्म्स के ऊपर, आप क्वेश्चंस कर रहे हो। क्वेश्चन 42, which of the following is an intermediate in the reaction of benzene with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3। तो ये बेंजीन के मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है विद मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 की प्रेजेंस में। दिस इज एक्चुअली अ नेम्ड रिएक्शन कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। एनहाइड्रस AlCl3 जब हम ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है क्लोरोबेंजीन, नहीं मिथाइल क्लोराइड ऐड किया था तो मिथाइल अटैच होगा। देखो मिथाइल करना है या क्लोरीन, वो कैसे डिसाइड होगा, वो मैकेनिज्म से डिसाइड होता है। लुक एट द मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म का नाम कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होके आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू आर गिवन बेंजीन, और उससे पहले बेंजीन से पहले हम शो कर देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। CH3Cl will combine with AlCl3 and there will be loss of chloride। क्लोराइड AlCl3 ले गया और पीछे रह गया CH3+ जो कि मिथाइल कार्बोकैटायन है। इट इज अ लुईस एसिड, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये मिथाइल क्लोराइड के
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकेंड स्टेप में ये बेंजीन के पास आता है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है बेंजीन की तरफ, और यही वाला स्लो स्टेप है, यही स्टेप सारे डिसीजन लेगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो सिचुएशन ये अराइज होती है कि CH3 पॉजिटिव चार्ज था, वो एक तरफ अटैच हो गया और उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी था और पॉजिटिव चार्ज आ गया एट ऑर्थो पोजीशन। मैंने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे माइग्रेट करा दिया है, जहां नेगेटिव चार्ज था दोनों इलेक्ट्रॉन जहां माइग्रेट हुए वहां नेगेटिव चार्ज आया, उसी पे CH3 अटैच हो गया। गॉट इट? नाउ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसको एरिनियम आयन कहते हैं, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। दिस इज एरिनियम आयन, स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। फिर यहां थर्ड स्टेप में ये H+ का लॉस दिखाएंगे हम। H+ is lost and you are left with toluene. Pi bond is back. ये टॉलुइन आ गया, तो H+ को बाहर ले जाओ, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो जब आपका बेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड ऐड किया, टॉलुइन आंसर आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट था CH3+, जिसको कार्बोकैटायन बोल रहे थे, ये था CH3+। गॉट इट? आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बेंजीन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। 43rd नाउ, विच ऑफ द क्वेश्चन इज द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1। SN1 में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। फॉर SN1 कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। ए ऑप्शन में तो एक अच्छा कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसका नाम है विनाइल कार्बोकैटायन। बी ऑप्शन में नो कार्बोकैटायन पॉसिबल। क्लोरोबेंजीन हैज रेजोनेंस, कार्बोकैटायन नॉट फॉर्म्ड। सी ऑप्शन में दिया है बेंजाइल क्लोराइड, this is benzyl carbocation stable due to resonance. Benzyl carbocation is stable due to resonance. D option देखो, C6H5 CH and CH3 is given, ये कार्बोकैटायन बनेगा। This is also benzylic, so this is also stable due to resonance. तो जहां जहां स्टेबल कार्बोकैटायन है वो SN1 शो करेगा, जहां नहीं है वो शो नहीं करेगा। आपका आंसर है बी, क्योंकि डज नॉट अंडरगो SN1 शो करना था। नो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल थ्रू SN1 इन दिस कंपाउंड, राइट। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। द मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज, अगेन सम रेडिकल्स आर गिवन। पहले वाला जो है वो विनाइल रेडिकल है, सेकेंड इज एलाइल। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा तो एलाइल बोलेंगे। थर्ड वन इज ऑल्सो एलाइल, और जो डी कंपाउंड है वो भी एलाइल है। ये बट 3 डिग्री बन रहा है, ये 1 डिग्री बन रहा है, वो भी 1 डिग्री, सो एलाइल एंड 3 डिग्री। तो इसका अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप देख सकते हो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसको मूव करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ, ये मूव करेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज स्टेबल। हमारा आंसर है डी। देखो, कहने को तो बी में भी एलाइल दे रखा है, सी में भी, डी में भी, बट डी में एलाइल के साथ साथ वो 3 डिग्री भी है। नेक्स्ट इज, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज अ लुईस एसिड एंड विच इज अ लुईस बेस, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन को पहले लिखेंगे, कार्बोकैटायन इज गिवन टू अस, उसमें वाटर ऐड किया, ये बन गया CH3 थ्राइस COH एंड H+। इस तरीके से रिएक्शन होता है। इसने अपना लोन पेयर दिया है, लोन पेयर के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है,
तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है। और इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, जो गेन करता है वो लुईस एसिड है। तो आंसर है फर्स्ट वन इज लुईस एसिड, सेकंड इज लुईस बेस। बी ऑप्शन में तो वाइस वर्सा दिया है, आपका आंसर ए बनेगा, राइट। सो इस तरीके से ये डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन है। थिंग्स आर क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दी चैप्टर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं पूरी ऑर्गेनिक में यूज होने हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को लुईस एसिड कहते हैं या लुईस बेस कहते हैं। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसे कि कार्बोकैटायन है, आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है या पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बेसिक चीजें अगर क्लियर हैं तभी आप एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन कर सकते हो। 4 कंपाउंड्स आर गिवन और 4 आयोन्स आर गिवन। वी हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है दैट स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। अपार्ट फ्रॉम दैट रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा मेन टारगेट था। सारे इफेक्ट्स हमने पढ़े, एरोमेटिसिटी हमने पढ़ा, वो इसलिए कि ये समझ में आ जाए द गिवन रिएक्शन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन और इट कैन बी एलिमिनेशन, जिसमें E1 E2 होते हैं और सब्सटीट्यूशन है तो SN1 SN2 होते हैं। तो रिएक्शंस की डिटेल के लिए हमारे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी यूज होने हैं। दैट थिंग वाज इम्पॉर्टेंट। सो रिवाइज द चैप्टर प्रॉपरली, कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो and thank you and bye bye. Make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the other lectures, right? Okay, thank you.